Good morning, students. How are you? Myself, Sanjay Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SNKP Government College, Nimka Thana. In previous class, we discussed about abiotic acid. It is a terpenoids. Today, we discuss about the well-known carotenoids, carotene or beta carotene. Firstly, we talk about carotenoids. What is carotenoids? Carotenoids, also called tetraterpenoids, are yellow, orange, and red organic pigments that are produced by plants and algae as well as several bacteria and fungi. Carotenoids give the characteristic color to pumpkins, carrots, corn, tomatoes, canaries, flamingos, salmon, lobster, shrimp and daffodils. जो इनके अंदर जो ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक कलर होता है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कैरोटिनॉइड्स. Carotenoids can be produced from fats and other basic organic metabolic building blocks by all these organisms. It is also produced by endosymbiotic bacteria in whiteflies. Carotenoids from the diet are stored in the fatty tissues of animals, and exclusively carnivorous animals obtain the compounds from animal fat. In the human diet, absorption of carotenoids is improved when consumed with fat in a meal. Cooking carotenoids containing vegetables in oil increases carotenoid bioavailability. There are over 1100 non-carotenoids which can be further categorized into two classes. Xanthophiles, xanthophiles which contain oxygen, and carotenes which are purely hydrocarbons and contain no oxygen. All are derivatives of tetraterpenes, meaning that they are produced from 8 isoprene molecule and contain 40 carbon atoms and 56 hydrogen atom. In general, carotenoids absorb wavelength ranging from 400 to 550 nanometer visible to green light. This causes the compounds to be deeply colored yellow, ऑरेंज और रेड. और इसका एक और वो रीजन है कि इसमें लॉन्ग कॉन्जुगेशन पाया जाता है. इसमें 11 डबल बॉन्ड्स है, तो कॉन्जुगेशन ज़्यादा है लेंथ उसकी. इस वजह से भी ये क्या है कि कलर्ड कंपाउंड होता है. कैरोटिनॉइड्स आर द डोमिनेंट पिगमेंट इन ऑटम लीफ कलरेशन ऑफ अबाउट 50 to 30% of trees species. But many plant colors, especially red and purples, are due to polyphenols. Carotenoids serve two key roles in plant and algae. They absorb light energy for use in photosynthesis, and they provide photoprotection via non-photochemical quenching. तो ये दो रोल प्ले करता है. एक तो लाइट को एब्जॉर्ब करने का, जो फोटोसिंथेसिस में काम आती है, और दूसरा जो फोटो प्रोटेक्शन होती है, जो वाया नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग. कैरोटिनॉइड्स दैट कंटेंस अनसब्स्टिट्यूटेड बीटा इनोन रिंग्स. इसमें क्या होती है, जो थ्री जो कैरोटीन्स है, अल्फा, बीटा और गामा, और जो इसमें क्या होती है, 2 बीटा इनोन रिंग्स होती है, जो साइड रेजिड्यू उसके तौर पे. In the eyes, lutein, mesozeaxanthin and zeaxanthin are present as muscular pigments.
whose importance in visual functions as of 2016 remains under clinical research। अब बात करें जैसे इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस की, तो देखो इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ कैरोटीनॉइड्स इम्पार्ट्स बायोलॉजिकल एबिलिटीज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोप्रोटेक्शन, प्लांट कलरेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो ये बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, और फोटो प्रोटेक्शन, प्लांट कलरेशन और सेल सिग्नलिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कैरोटीनॉइड इज ए पॉलीइन चेन कंसिस्टिंग ऑफ 9 to 11 डबल बॉन्ड्स एंड पॉसिबली टर्मिनेटिंग इन रिंग्स। दिस स्ट्रक्चर ऑफ conjugated double bonds leads to a high reducing potential or the ability to transfer electrons throughout the molecule. Carotenoids can transfer excitation energy in one of two ways. किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? सिंगलेट टू सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम कैरोटीनॉइड टू क्लोरोफिल, सेकंड क्लोरोफिल, एंड टू ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम क्लोरोफिल टू कैरोटीनॉइड। तो फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, सिंगलेट से सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर, तो किसमें, कैरोटीनॉइड टू क्लोरोफिल। और दूसरा जो है ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर, कहाँ से कहाँ, क्लोरोफिल टू कैरोटीनॉइड्स। द सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर इज ए लोअर एनर्जी स्टेट transfer and is used during photosynthesis. The length of the polyene tail enable light absorbance in the photosynthetic range. Once it absorbs energy, it becomes excited, then transfer the excited and electrons to the chlorophyll for photosynthesis. The triplet transfer is a higher energy state and is essential in photo protection. तो देखो इसमें जो सिंगलेट टू सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो किस में काम आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में, और जो ट्रिपलेट से ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ये फोटो प्रोटेक्शन में, जो पिंचिंग वाले जो रिएक्शन स्टॉप हो रही थी उसमें यूज हो रहा है। बोथ लाइट एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस डैमेजिंग स्पीसीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विद द लॉस्ट डैमेजिंग बीइंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अब जो कैरोटीनॉइड्स की बात करें, जो उसकी लेंथ होती है उस वो भी प्लांट कलरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जानते हैं कि जितने भी डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी और कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा तो जो उसका कलर क्या होता जाता है, डीप होता जाता है। कैरोटीनॉइड्स आल्सो पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। दे आर एबल टू सिग्नल द प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड which regulate plant growth, seed dormancy, embryo maturation and germination, cell division and elongation, floral growth and stress responses। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो कैरोटीनॉइड विथ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ऑक्सीजन सच एज ल्यूटीन, जियोजेंथिन आर आल्सो नोन एज जेंथोफाइल्स, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था। और जो अनऑक्सीजनेटेड जो कैरोटीनॉइड्स है सच एज अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपिन आर नोन एज कैरोटीन्स। कैरोटीन टिपिकली कंटेन्स, कैरोटीन्स में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, मेनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। कैरोटीनॉइड्स को जो हमने डिवाइड किया कैरोटीन्स में, ये बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन, और जेंथोफिल में जेंथोनिन, ल्यूटीन, और ये सारे इसमें ये इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे 5 एसेंशियल वो है जो बात करें जो कैरोटीनॉइड्स है, अल्फा कैरोटीन तो आप यहाँ देख रहे हैं, और बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जियोजेंथिन और ल्यूटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरोटीन्स है। लाइकोपिन है, बीटा कैरोटीन जैसे लाइकोपिन में क्या है, ये किस में होता है, टोमेटो में, और इसमें रिंग नहीं होती है ये बिल्कुल। और बीटा कैरोटीन में 2 रिंग्स है, अल्फा कैरोटीन, और ये बीटा क्रिप्टोजेंथिन, जियोजेंथिन, ल्यूटीन, ये सारे इसमें ये है। आगे ये बेंजीन रिंग, इसमें सॉरी इसमें रिंग प्रेजेंट होती है टर्मिनल्स पे, एंड पे, या दोनों तरफ। सोर्सेज की बात करें, बीटा कैरोटीन फाउंड इन पम्पकिन्स, स्वीट पोटैटो, कैरट्स एंड विंटर स्क्वेसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑरेंज येलो कलर्स। ड्राइड कैरोट्स हैव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कैरोटीन ऑफ एनी फूड पर 100 ग्राम सर्विंग, मेजर्ड इन रेटिनॉल
एक्टिविटी इक्विवेलेंट Vietnamese gek fruit contains the highest known concentration of the carotenoid lycopene. Although green kale, spinach, collard greens and turnip greens contains substantial amount of beta carotene. अब बात करें जैसे इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है जो बॉडी पर, कि भाई इसकी कैरोटीन्स की प्रेजेंस में और एब्सेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो इसमें कई सारे पेपर्स रिव्यूड हुए हैं जो देखने को मिला है कि जो हेड और नेक जो कैंसर होता है तो उसमें भी जैसे अगर प्रॉपर मात्रा में बॉडी में फूड में लिया जाए कैरोटीनॉइड से तो इसमें क्या काफ़ी रिलीफ मिलता है, इसमें प्रोटेक्शन में हेल्प मिलती है। और जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसको प्रिवेंट करने में भी अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो पार्किंसन डिजीज़ होती है विटामिन ए की वजह से तो उसको भी इसकी रिस्क को कम करता है कैरोटीनॉइड अगर ज़्यादा मात्रा में फूड में लिया जाए। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको भी रोकने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डार्क ब्राउन पिगमेंट मेलानिन विच इज फाउंड इन हेयर, स्किन एंड आइज। मेलानिन absorb high energy light and protects these organs from intercellular damage. Several studies have observed positive effects of high carotenoids diets on the texture, clarity, color, strength and elasticity of skin. In 1994, study noted that high carotenoid diets helped reduce symptoms of आई स्ट्रेन। जैसे आई स्ट्रेन का मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ड्राई आई, हेडेक एंड ब्लड विजन एंड इम्प्रूव नाइट विजन। ये क्या है कि ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स आर मोस्टली इनकेपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग कैरोटीनॉइड्स एंड मस्ट ऑब्टेन देम थ्रू देयर डाइट। कुल मिला क्या है कि ह्यूमंस और एनिमल्स में इसका सिंथेसिस नहीं होता है, तो ये जो कैरोटीनॉइड्स की पूर्ति कहाँ से करते हैं, जो उसकी फूड डाइट्स होती है इसके द्वारा ये करते हैं। अब बात करें, मैं जो इम्पोर्टेंट जो कैरोटीन की बात कर रहा हूँ तो कैरोटीन की बात हम करते हैं इसमें। कैरोटीन्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कैरोटीन कंटेंट्स नो ऑक्सीजन, जो पहले भी हमने बात की थी कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स, तो इसमें कैरोटीन्स में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। दे एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट एंड ब्लू लाइट एंड स्कैटर्ड ऑरेंज और रेड लाइट एंड येलो लाइट। कैरोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर ऑफ द कैरोट फॉर विच दिस क्लास ऑफ केमिकल इज नेम्ड। जो कैरोटीन जो नाम पड़ा है किससे, गाजर, कैरोट से पड़ा है, क्योंकि ये कैरोट में काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और फंगाई वगैरह, जो फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटोज, चेंट्रेलिल एंड ऑरेंज कैंटालोप मेलोन, इनमें ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। कैरोटीन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर इन ड्राई फॉलिक। दे आल्सो इम्पार्ट द येलो कलरेशन टू मिल्क, फैट एंड बटर। देखो इसमें जो कैरोटीन्स है इसको फर्स्ट आइसोलेट किया गया था वेकनोडर 1831 में किया गया था कैरेट से, और जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C40H56। और ये क्या है, कैरोटीन से अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसमें 9 to 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और जो कैरोटीन्स है इनको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से भी सेपरेट किया जाता है। तो अब बात करें जैसे हमारे पास जो 3 टाइप की जो कैरोटीन्स की बात करें, अल्फा कैरोटीन जो वायलेट कलर्ड है, वायलेट क्रिस्टल्स होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट 187 to 187.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और कौन किस टाइप का होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जो बीटा कैरोटीन है वो रेड क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और जो गामा कैरोटीन है वो डार्क रेड क्रिस्टल होते हैं इसके, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 152 से 2 to 154 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी इट इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, ये इनोन रेजिड्यू है, इसमें इनोन पार्ट है दोनों बोथ साइड में, और ये सारा आप यहाँ देख रहे हैं। तो जो कैरेट होती है, जो कैरेट में इसमें कितना परसेंट होती है, इसमें 15% तो अल्फा कैरोटीन होती है और 85% बीटा कैरोटीन होती है और 0.15% गामा कैरोटीन प्रेजेंट होती है।
अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर एलिसिटेशन की बात करें, तो इसका जो फर्स्ट बात करें, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो मैंने आपसे पहले भी कहा है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होता है, C40H56 एट आइसोप्रीन यूनिट है। तो टेट्राटर्पिनोइड्स है ये एक प्रकार से। इसमें प्रेजेंसी ऑफ 11 डबल बॉन्ड, तो अगर इसके जैसे हाइड्रोजनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो 11 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एडिशन होता है, तो इसमें para हाइड्रो बीटा कैरोटीन बनती है। तो ये प्रूव कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, तो इसका मतलब इसमें क्या है, 2 रिंग प्रेजेंट है। फिर बात करें कि जब इसको एयर में एक्सपोज्ड किया जाता है तो क्या होता है, वॉयलेट्स जो कलर आती है इसमें स्मेल आती है, और जो किसके वजह से आता है, बीटा इनोन की वजह से आता है। और जैसे बीटा कैरोटीन है, अगर बेंजीन में इसका कोल्ड केमोनोफोर डाल के ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो इसमें बनता है बीटा इनोन फॉर्मेशन होता है। और जैसे ये बीटा इनोन है, इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो जेरोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बात करें जैसे जेरोनिक एसिड है, इसका आगे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसमें गिव्स किसकी प्रेजेंस में, एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, तो इसमें बनता है एसिटिक एसिड, डाईमिथाइल ग्लूटेरिक एसिड, 2,2-डाईमिथाइल सक्सिनिक एसिड एंड डाईमिथाइल मेलोनिक एसिड। तो इसके वेरियस मिक्सचर ऑफ एसिड्स होते हैं जब इसका ऑक्सीडेशन ये करवाते हैं जेरोनिक कोल्ड केमनोफोर की प्रेजेंस में। तो ये प्रूव कर रहा है कि इट इज प्रूव दैट C14 पोर्शन मस्ट बी हैव मैथिल साइड चेन। इसके अलावा कई सारे टेक्निक्स है और ये हम इसमें आगे देख सकते हैं, तो उसके आधार पे इसकी स्ट्रक्चर का इलुस्ट्रेशन हो जाता है। और इसमें क्या है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है इसमें 3 पार्ट कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ 18 है। तो जैसे 3 के पास क्या, 3 मेथिल और 7 पर मेथिल, और यहाँ पर क्या हो गया, ये जैसे आगे देखें तो ये इधर ये कितने पर है, 16 पे मेथिल है और यहाँ पर 12 पर, तो 4 इसमें साइड चेन के तौर पे इसमें मेथिल प्रेजेंट है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर की बात की। अब बात करें जैसे इसका सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस का मैं जो एक सिंपलेस्ट मेथड ले रहा हूँ आपके सामने कि एसिटाइलिक कार्बिनोल, और ये 1950 में जो ये मेथड है सिंथेसिस की, ये किसके द्वारा, केरर के द्वारा दिया गया था। तो बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस हम देखते हैं। तो पहले तो क्या है कि जैसे ये है ना एसिटाइलिक कार्बिनोल जो बनाना है, तो ये किससे, बीटा इनोन से बन रहा है। तो इसकी रिफॉर्मेटस की रिएक्शन करवाते हैं तो ये C16 जो ये वाला पार्ट इसमें बन जाता है। जो कार्बिनोल की बात करें तो C16 इसके 2 पार्ट लेते हैं और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, अटैक होगा कहाँ पर, इस पर कार्बन, और पर MgBr यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से C2H6 ये निकल जाएगा और यहाँ पर ये OMgBr यहाँ हो गया। आगे देखें जैसे ये C8 ये वाला पार्ट यहाँ ला के जोड़ देते हैं तो बीच में ये वाला पार्ट इसमें बन गया। अब जो OH है तो OH ग्रुप को हम क्या करें, यहाँ से हटाएंगे। तो पहले लिंडलार कटले सिस एडिशन करवाते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो दोनों जो है एसिटाइलिक जो है इसमें एल्काइन पार्ट है, उसमें ये हाइड्रोजन का एडिशन, सिस एडिशन हो जाता है। फिर आगे जैसे टोसिल हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये वाटर क्या होता है, यहाँ से क्या निकल जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इसमें से वाटर कितने 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और आगे देखो यहाँ पर बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मैं आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, और जो मैंने आज इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया और इसकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए मैंने डिस्कस किया। तो कैरोटीन क्या है कि गाजर का मेनली पार्ट है। तो बात करें ये किसके लिए, आई टॉनिक के रूप में भी जो आई है, तो आई विटामिन ए के उसमें भी ये यूज हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज जो हमने आज डिस्कस की है। धन्यवाद।